अम्मा भगवान शरणम। कल्याणपुर में एक जवान लड़का रहता था। वो अक्सर बीमार पड़ता रहता था। उसे बुखार होता था। बुखार की वजह क्या थी ये किसी को नहीं मालूम थी। ऐसी एक दिन उसे बहुत ज़्यादा बुखार आया तो वो ऑफिस नहीं गया। काम पर वो जा नहीं सका। उस दिन भगवान ने उस लड़के का रूप धारण किया और उसके ऑफिस में चले गए। उसके बॉस के असिस्टेंट की तरह उन्होंने पूरा दिन काम किया और उस लड़के का सारा काम एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। ऐसे ही अम्मा भगवान कई लोगों के, कई भक्तों के दिल में अंतर्यामिन बनकर रहते हैं। उन्हें मार्गदर्शन करते रहते हैं। कुछ लोगों को उनका आभास होता है, कई लोगों को वो सुनाई देते हैं, कई लोगों के सामने वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप जब हमें देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो भगवान ने कहा, मैं तुमसे कभी अलग महसूस ही नहीं करता। तुम सभी लोग मेरे अंदर समाये हुए हो, इसलिए मैं तुम लोगों का सारा दर्द एक सेकंड में जान सकता हूँ। कितनी करुणा है ना? The self being an illusory thing. The self does not really exist. It's just born out of sensory coordination and all the psychological contents they create this. It does not have an existence of its own. So constantly it must be reminded, yes, you are there. You are very much there. And this happens if somebody loves you. Then you constantly feel reinforced. You feel the reality of your existence, that you are wanted and therefore you are there. That gives you a nice sense of security, a good feeling. That's why you crave for a love. That's why once you discover love, that you yourself are love, you will no more beg for love. All this love that the youth are talking about, you're just begging for love, You just keep begging for love. But then once you discover this true love, you just give love, you no more beg for love. And to have true love is almost to become enlightened. So when you have enlightenment, you are not there. When you are not there, what is there is only love. In which case you don't beg for love. But as long as that does not happen, there is insecurity, there is fear, because every moment the self is disintegrating. So it has to possess things. This property is mine. I have these degrees, I have this job, I have this business, I have this name, I have this fame. All this reinforces you. Therefore, you want to have these things, and one of the strongest reinforcements is love. That somebody loves for you, that somebody cares you, somebody loves you, somebody cares for you, all these things help sustain you. Therefore, you keep going at it. The moment that somebody falls in love with a better person than you, you are finished. That means you are no more wanted and you start disintegrating. That's why you see how there's something in the papers recently, how one boy was in love with a girl or something. The girl would not respond, therefore he just killed her. I met a lot of people, like even among our devotees, who earlier, before they came to Dharma, had fallen in love, and when the girl did not respond or later on loved somebody, just killed them or maimed them, So my question, what kind of love is that? You tell that he is the most wonderful person in the world and that I love her, and then you kill her. The moment she says she's in love with somebody else, instead of celebrating it, that she got a better person than you, or such a wretch. So you don't do it that way, So what is all this love? When you say I love somebody, it means you love yourself. That's all there is to it. You can never love anybody. How could you do that? You can only love yourself. And which you say I love so much. I love them so much means I love myself so much. I need so much of love to survive. Otherwise, I'm gone. But you must know, I'm not condemning it. I'm just describing things as they are. I'm not telling you, don't fall in love, feel totally secure by being a zero. I'm not talking all those things. I'm saying that is a fact of life. Go ahead. There's no harm. I myself keep blessing. People come and say, I want to marry that person or this person. I give them full blessings and I send them. So each one is according to his level we must function. यह एक प्रकार से अहम का प्रबलीकरण है। अहम काल्पनिक होता है जो इंद्रियों की गति एवं मानसिक अंशों के कारण निर्माण होता है। उसका अपना एक अस्तित्व नहीं होता। इसलिए
उसे हमेशा यह बोध कराना पड़ता है कि हाँ हाँ तुम पूरी तरह से हो। और यह तब होता है जब कोई आपसे प्रेम करता है, तभी आप निरंतर प्रबलीकरण महसूस करते हैं। आप अपनी आवश्यकता को महसूस करने लगते हैं कि आप वास्तव में हैं। यह आपको सुरक्षा एवं एक सुखद अनुभूति देता है। यही कारण है कि आप प्रेम पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। इसलिए जब आप संपूर्णतः प्रेम को खोज कर लेते हैं कि आप स्वयं वह प्रेम हो, तब वहाँ पर प्रेम पाने के लिए कोई तड़प नहीं होगी। आज जिस प्रेम की आप बात करते हैं वह केवल प्रेम की भीख मांगना है। परंतु जब आप इस सच्चे प्रेम की खोज कर लेंगे, तभी आप प्रेम मांगने के बजाय प्रेम देने लगेंगे। सच्चे प्रेम का होना यानी जीवन मुक्ति है। आप जब मुक्ति पा लेते हैं तो वहाँ पर आप नहीं हैं, और जब आप नहीं हैं तो वहाँ पर केवल प्रेम ही है। जब तक यह सब कुछ नहीं होता, तब तक वहाँ पर जो कुछ भी है वह केवल असुरक्षा और भय है, क्योंकि हर क्षण अहम अपने आप को जीवित रखना चाहता है। इसलिए वह सदैव यह कहता है कि यह मैं हूँ, यह मेरी प्रॉपर्टी है, यह मेरा व्यापार है। यह सभी आपको प्रबलित करते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि यह सब कुछ रहे, और सबसे बलवान मार्ग है प्रेम। इसलिए किसी का प्रेम, चाह, यह सब कुछ आपको जीवित रखता है। कई बार अखबारों में आपने यह पढ़ा होगा कि किस तरह एक लड़के ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसके प्रेम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यह कैसा प्रेम है? कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि यह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, और आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और आप उसकी हत्या कर देते हैं क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती है। खुश होने के बजाय कि उसे आपसे भी अच्छा व्यक्ति मिला है, आप उससे घृणा करते हैं। यह कैसा प्रेम है? जब आप कहते हैं मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, तो उसका अर्थ यह है कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं। जब मैं यह सब कुछ वर्णन कर रहा हूँ तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि यह ऐसा है बस। वैसे मैं स्वयं कई लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि उन्हें मनपसंद व्यक्ति मिले जिनसे वह प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति के अनुसार जो उसके लिए ठीक है वही होना चाहिए। नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। एक प्रेमी बहुत सालों के बाद अपनी प्रेमिका के घर पे जाता है। पूरे उत्साह से और आनंद से भरा हुआ प्रेमी प्रेमिका के दरवाजे पे खटखटाता है। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद अंदर से एक मधुर आवाज आती है। कौन है? प्रेमी कहता है, मैं हूं। अंदर से आवाज आती है, आज नहीं, फिर कभी आइए। प्रेमी वहां से चला जाता है। थोड़े दिन के बाद उसी उत्साह के साथ वो आकर प्रेमिका का दरवाजा ठकठकाता है। अंदर से वापस वही मधुर आवाज आती है। कौन है? प्रेमी कहता है, मैं हूं। प्रेमिका कहती है, आज आप यहां से जाइए, अगली बार आइए। हताश होकर वहां से प्रेमी चला जाता है। कुछ सालों के बाद प्रेमी किस चीज को महसूस करके वापस आता है और दरवाजा खटखटाता है और कहता है, आप आए हैं, और दरवाजा खुल जाता है। प्रेम की भाषा असीमित है। प्रेम किसी तर्क और कारणों पर आधारित नहीं है। जहां पे आप दूसरों की भावना महसूस करते हैं, जहां पे आप नहीं हैं। अभी अभी आपने ये कहानी सुनी, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रेम या प्यार, ये जो भावना है वो किस तरह की होनी चाहिए। प्रेम के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, बगैर कोई कारण का प्यार, बगैर कोई कारण का प्रेम। ऐसे ही प्रेम की अगर आपको अनुभूति करनी है,
अनकंडीशनल लव की अनुभूति आपको अगर करनी है तो आप हमारी मुक्ति दीक्षा और वरद दीक्षा में ज़रूर भाग लीजिए। ये मेरी आपसे दिलो जान से विनती है। नमस्ते। नमस्ते प्रशांत जी। नमस्ते। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम प्रशांत दलाल, मैं नासिक से आया हूँ। प्रशांत जी, आप बहुत शांत लग रहे हैं, आप उसका कारण बताएंगे? मैं अम्मा भगवान का एक यूथ जो मुक्ति दीक्षा में गया था, वननेस यूनिवर्सिटी में 6 दिन का प्रोग्राम है, उसको मैंने अटेंड किया। उसके बाद मैं पूरी तरह से शांत हो गया। आप अम्मा भगवान और ये वननेस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे जाने और आप यहाँ कैसे पहुँचे? अम्मा भगवान को मैं 9 जून 2000 में एक अम्मा भगवान का प्रोग्राम था, वहाँ पे मैं जाके अम्मा भगवान को मैंने जाना। यहाँ आने के बाद मुक्ति दीक्षा के दौरान आपको कैसे महसूस हुआ, आप बताएंगे? मैं अम्मा भगवान के 6 दिन का यूथ जो मुक्ति दीक्षा के जाने के बाद मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, ये बताने के पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ मैं पहले कैसे था। पहले मेरे अंदर कंसंट्रेशन नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरी जो मेमोरी पावर है पूरी वीक थी। उसके बाद मेरे अंदर ढेर सारा डर था, मेरी मम्मी डैडी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं थी, और मेरे अंदर जो एनर्जी गई थी, एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर, और जो भी काम करता था पूरी तरह से उसमें मुझे अनसक्सेस मिलता था, यानी पूरी तरह मेरी लाइफ से हार चुका था पूरी तरह से। ऐसी मेरी पहली स्थिति थी। परंतु मैंने जब मैं इस 6 दिन के यूथ मुक्ति प्रोसेस में वननेस यूनिवर्सिटी में गया, उसमें 6 दिनों में अम्मा भगवान ने फर्स्ट दिन मुझे एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि मेरे अंदर का जो डर है जो पूरी तरह से निकाल दिया। फिर अम्मा भगवान ने मुझे मेरे अंदर का जो गुस्सा है, द्वेष है, जो कि निगेटिविटी है, पूरी तरह से उसको निकाल डाला। उसके बाद अम्मा भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया 6 दिनों में। फिर उस आशीर्वाद में क्या हुआ मालूम है क्या? जैसे एक साइंटिस्ट रीज़न है कि ब्रेन को करंट देने के बाद ब्रेन डेवलप होता है, वैसे ही सेम से अम्मा भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस दौरान क्या हुआ, मेरा जो ब्रेन है जैसे उसको कोई करंट दे रहा था, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा था। पूरी तरह से कंटिन्यू 12 घंटे चला, कंटिन्यू सुबह से रात तक कंटिन्यू चला। कंटिन्यू 5 मिनट के बाद अम्मा भगवान वो करंट मेरे ब्रेन को दे रहे थे। फिर उसके बाद अम्मा भगवान ने मेरे अंदर जो मैं की भावना थी, मैं भगवान ने पूरी तरह से मुझे दिखा दिया कि मेरे जो मम्मी डैडी है, वो फैमिली मेम्बर है, वो है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैंने वो कबूल किया, अम्मा भगवान को प्रार्थना की, मेरे मम्मी डैडी है तो मैं हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर है तो मैं हूँ, मैं कुछ अलग मैं नहीं हूँ। फिर अम्मा भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया कि स्वयं मेरे दिल में, मेरे हृदय में आके वो बैठ गए। वो एक अंदर एक गोल्डन सा दुनिया, एक नई गोल्डन सी दुनिया बनाई, और उसके अंदर अम्मा भगवान स्वयं आके बैठ गए। फिर अंदर से पूरी तरह से अम्मा भगवान अब गाइड कर रहे हैं हर टाइम, एवरी मिनट्स, और अम्मा भगवान ने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। अम्मा भगवान के इतने अनुग्रह पाने के बाद आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं? अम्मा भगवान का यूथ जीवन मुक्ति दीक्षा होने के बाद मैं घर गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। जाने के बाद उसमें पढ़ाई में मैं पहले जो पढ़ाई करता था 10 बार पढ़ता था, फिर भी एक भी बार मेरे याद नहीं रहता था।
फिर ये प्रोसेस के बाद मैं एक ही बार पढ़ता हूँ, पूरी तरह से फुल एंड फाइनल मेरे अंदर जाता था, वो भी हमेशा के लिए जाता है। फिर उसके बाद मेरे अंदर कंसंट्रेशन नहीं था, मैं पढ़ाई करता था, 6-6 घंटा पढ़ाई करता था लेकिन मैं 6 घंटे में मैं कम से कम 4 घंटे मेरे जो माइंड है उसके साथ मैं घूमता था, दोस्त के साथ पिक्चर देखता था, मैंने ऐसे माइंड के साथ में घूमता था। आज कॉलेज में क्या हुआ, टीचर को कैसे हमने ये किया, पूरी तरह से वो माइंड के साथ में घूमता था। पर लेकिन मैं आज कहता हूँ, मैं अब पढ़ाई करता हूँ तो मैं कंटिन्यू अभी जो 6 घंटा पढ़ाई करता, अभी वो सिर्फ मैं 3 घंटे में पढ़ाई करता हूँ, वो भी पूरा कंसंट्रेशन के साथ करता हूँ। और पूरा जो अंदर का माइंड है, अम्मा वो ने पूरे से उसको शांत कर दिया है। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं था, किसी ने कहा कि आप जाके स्टेज में जाके बोलिए, इंटरव्यू में जाके आप इंटरव्यू दीजिए, मैं पूरी तरह से डर जाता था, एक भीति अंदर से आता था, डर आता था। फिर अम्मा बाबा ने वो कंसंट्रेशन एक गिफ्ट दिया मुझे, एक रत्न मेरे अंदर अम्मा बाबा ने डाल दिया, मैं अभी कॉन्फिडेंस वो मेरे अंदर डाल दिया अम्मा बाबा ने। फिर इसके वजह से मैं अभी स्टेज में जाके स्टेज शो कर रहा हूँ। उसके बाद जो इंटरव्यू रहती है, इंटरव्यू में फुल एंड फाइनल पूरी तरह से जो भी सवाल पूछते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ। उसके बाद आज जो आप देख रहे हो टीवी पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी अम्मा बाबा की ही वजह से, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रहा था अच्छी तरह से, तो अम्मा बाबा ने वो मुझे एक दिया, गिफ्ट दिया है। और उसके बाद मैं पढ़ाई एग्ज़ाम को जाता था, तो एग्ज़ाम को जाने के बाद, पेपर हाथ में आने के बाद मैं जो भी पढ़ाई की वो डर के मारे सब भूल जाता था। पर अभी वो कुछ भी नहीं, मैं पूरी तरह से लिख पा रहा हूँ। और अम्मा बाबा ने मेरे जो मम्मी डैडी है उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया। और उसके बाद अम्मा बाबा स्वयं मेरे अंदर, मेरे दिल में रहते हैं, वो पूरी तरह से मुझे अंदर से गाइड करते हैं। मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मैं एमपीसी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसका मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे मैथ का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ फॉर्मूले मुझे याद नहीं आ रहे थे, कुछ वो एक मेरी साइड अलग थी, मैं बीए की मेरी साइड है, इसलिए मेरा मैथ का कुछ ये नहीं है। तो अम्मा बाबा ने मुझे एक अंदर से एक ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया, उसकी वजह से मैं सिर्फ कुछ सेकंड में उसका आंसर निकाल पा रहा हूँ आज। और जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक ही इसमें मेरा अंदर जाता है, और पूरी तरह से मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे पूरी सक्सेस मिल रही है। आज इस दुनिया में हर एक यूथ और पेरेंट्स बहुत परेशान है, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं पेरेंट्स, यूथ, उन सब के लिए मेरा एक विनती है कि आप यूथ जो अम्मा भगवान यूथ जीवन मुक्ति है ओननेस यूनिवर्सिटी में, आप उसको आके ज्वाइन कीजिए, इसको उसमें आके आप भाग लीजिए पूरी तरह से। वो आपका पूरा जो भी लाइफ है पूरी तरह से सक्सेस बनाइए, आपका जो भी एम है उसको पूरी सक्सेस बनाइए। वो अम्मा भगवान आपको पूरी तरह से आपका जो भी लाइफ है उसको टेक ओवर करके आपका पूरा जीवन सक्सेसफुल बना देंगे। नमस्ते प्रशांत जी। नमस्ते।